اردو گلدستہ لے کر کے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں کلاس 8ویں کلاس کو لے کر کے ہندوستان جنت نشاں ہندوستان جنت نشاں صالحہ عابد حسین۔ اس لیسن کو لکھنے والے صالحہ عابد حسین ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے 1913 میں ہوئی ہے، 1913 میں، اور وفات 1989 میں۔ پیدائش 1930 میں اور وفات 1989 میں۔ صالحہ عابد حسین کا اصل نام مصداق فاطمہ تھا۔ کیا چیز؟ مصداق فاطمہ۔ صالحہ عابد حسین کا اصل نام مصداق فاطمہ تھا۔ وہ پانی پت میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق حالی کے خاندان سے تھا۔ بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق حالی کے خاندان سے تھا۔ ان کی شادی ڈاکٹر عابد حسین سے ہوئی تھی، جو اپنے زمانے کے ممتاز دانشور تھے۔ صالحہ عابد حسین کے اہم ناول یادوں کے چراغ، قطرے سے گوہر ہونے تک، اپنی سلیب، ساتواں آنگن اور راہ عمل ہے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں۔ ان کے کچھ مجموعوں کے نام اس طرح ہیں: نقش اول، ساز ہستی، درد درما، تین چہرے، نیراز میں آز وغیرہ۔ صالحہ عابد حسین نے بچوں کے لیے بھی کہانیاں اور مضامین لکھے ہیں، جیسے سنہرے بالوں والے، بچوں کا دیس، بہارے سندر اور بچوں کے الطاف حسین حالی۔ ان کی خودنوشت سوانح حیات کا نام سلسلہ روز و شب ہے۔ صالحہ عابد حسین نے اپنی تخلیقات کا موضوع متوسط طبقے کے عام سماجی اور نفسیاتی مسائل کو بنایا ہے۔ ان کی زبان عام فہم اور سادہ ہے۔ اس مضمون میں صالحہ عابد حسین نے کشمیر، بھوپال، آگرہ اور حیدرآباد کے اپنے سفر کا بیان بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو دوستو، آپ نے بھی صالحہ عابد حسین کے بارے میں کچھ چیزیں ملاحظہ کی۔ صالحہ عابد حسین کی زندگی اور ان کی بک وغیرہ کے نام کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں اس لیسن کو، کہ اس کے اندر میں صالحہ عابد حسین اپنے سفر نامے کو کس طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ بڑے دلچسپ اور بہترین ہیں۔ شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر سے ایک فرمائش کی تھی کہ مجھے سیاحت کا بہت شوق ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں انشاءاللہ ہندوستان دیکھیں گے، بلکہ باہر کے ملکوں کی بھی سیاحت کریں گے۔ گزشتہ 38 سال کے عرصے میں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جتنی سیاحت کی، وہ میرے طبقے اور میری حیثیت کی عورتوں کے نصیب میں بہت کم آتی ہے۔ صالحہ عابد بتا رہی ہیں، میری صحت کی کمزوری کی وجہ سے عابد صاحب گرمی میں دلی سے باہر کسی پہاڑی مقام پر جانے کا پروگرام بنایا کرتے تھے۔ زمانہ سستا تھا، کرائے کم تھے، پہاڑ پر ٹھہرنے کا انتظام کسی دوست کی وساطت سے مفت یا بہت کم پیسوں میں ہو جاتا تھا۔ وہاں جا کر ہم دونوں لکھنے کا کبھی کام کرتے تھے اور سیر بھی۔ اسی طرح میں نے ہندوستان کے پہاڑی مقامات دیکھے، جیسے کہ شملہ ہے، نینی تال ہے، اور رانی کھیت کی بھی سیر کی۔ مہابلیشور 3 دن جا کر رہے۔ یہ بڑا ہی سرسبز، پرفضا اور دلکش مقام ہے، لیکن سب سے زیادہ سیر میں نے کشمیر کی۔ سری نگر اور آس پاس کے علاقے تو چھانی ڈالے۔ اس کے علاوہ پامپور، سورن مرگ، یوسمر، مانس بین جھیل، جس کے چاروں طرف کنول کے پھولوں کے تختے اسے عجیب حسن بخشتے ہیں۔ اچھا بل، ککر ناگ، اننت ناگ کے آب حیات کے سے چشمے دیکھے ہیں۔ ان کا ٹھنڈا میٹھا پانی اور ان کے حسن سے آنکھوں کو تراوٹ بخشی دلائل کا جھولتا پل خود ایک عجیب چیز ہے، اور پھر دریا کا حسن اور اس کے رنگ برنگے پتھر جو جواہرات کو مات کرتے ہیں۔ اننت ناگ کی جھیل
मुक़द्दस मानी जाती। जम्मू के रास्ते श्रीनगर आते जाते कई बार वेरी नाग झील को देखा। हस्बे दस्तूर मुगलों ने उसके गिर्द भी एक वसी और हसीन बाग बनवा दिया था। उस झील की गहराई की कोई हद नहीं है, उसी से दरियाए झेलम निकलता है। हजारों बरस से करोड़ों टन पानी उसी में बहता रहता है और दरियाए झेलम में कभी पानी की कमी नहीं होती है। यूँ तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत अर्ज़ी मालूम होता है, लेकिन मुझे पहलगाम पहलगाम सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी सैर से जी कभी नहीं भरता। पहाड़ों की शानो शौकत और शानो शौकत और व सरसब्जी और दरख्तों और फूलों की शादाबी, दरियाए लिद्दिर का बेमिसाल हुस्न, जिसके शफ़ाफ पानी ने उस छोटी सी वादी को सचमुच वादिये मैनू एहसास बना दिया है। पहलगाम से ऊपर ऊंची पहाड़ियों पर जाइए और शानदार और ख़ूबसूरत मनाजिर मिलते हैं। आड़ुओं और चंदरवाड़ी की बुलंदियों पर तो हम सब गए और रास्ते में तड़पता हुआ चश्मों का सिमाब और बहती हुई चांदनी किसी आबशारें, ऊंची ऊंची बर्फ़ पोश चोटियाँ और गहरी सरसब्ज वादियाँ एक तरफ नज़रों को असीर कर लेती हैं तो दूसरी तरफ घोड़ों के फिसल जाने के डर से खौफ भी मालूम होता है। चंदनवाड़ी पहुंचकर दूर तक चश्मे पर जमी हुई बर्फ़ सड़क के मानिंद देखी। उस पर चले बर्फ़ तोड़कर खाई और सर्दी से जमजम से गए। गुलमर्ग कई बार गए। जमुर्दें प्याले की सी 9000 फीट की बुलंदी पर यह वादी हुस्न शादाबी का बड़ा ही दिलकश मंजर पेश करती है। उससे 3 मील नीच टंगे मर की वादी है, जिसका चश्मा दरिया के बराबर चौड़ा है और ऐसे ऐसे रंग और मनाजिर दिखाता है कि सुभान तेरी कुदरत बेख्तियार मुँह से निकलता है। दरिया, चश्मे, समंदर, बहता पानी मेरी कमज़ोरी है, उसका हुस्न मुझे मशहूर कर देता है। गुलमर्ग से 3 मील पतली पगडंडियों पर पैदल या टट्टू पर सवार होकर खिल्लनमर्ग जाते हैं। यहाँ बर्फ़ जमी मिलती है और एक तरफ दूर श्रीनगर की वादी और दूसरी तरफ हिमालय की सर्बफलक बर्फ़ का ताज पहने मशहूर चोटियाँ नजर आती। यहाँ की हवा हल्की है, मेरा सांस रुकता महसूस होता, मगर उस वक्त उन बातों की परवाह किसे थी। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों की सैर भी मैंने खूब की। देहात और गांव निस्बतन कम देखे और शहरों में ज़्यादा गई। पौना एक बार तो चंद दिन की सैर को गई थी। मगरबी घाट पर नन्ही पहाड़ियों पर बसा ये शहर आसपास का सरसब्ज इलाका देखने के काबिल है। बम्बई तो 20 बार गई। शुरू में पूरे बम्बई और आसपास की सैर खूब की, मगर चंद दिन से ज़्यादा वहाँ जीना लगता था। वहाँ का शोरगुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन बम्बई का समंदर, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, मेरीन ड्राइव, हैगिंग गार्डन मुझे बहुत पसंद है। और समंदर में डूबते और तुलू होते सूरज का नज़ारा और शाम की किरणों से चमकते मछेरों की कश्तियों के बादबान मेरी नज़रों को बांध लेते हैं। जुहू समंदर का जवार भाटा ताड़ के दरख्तों में से झांकता पूरा चांद और समंदर पर जवार भाटे का नज़ारा, ये सब मेरी दिलचस्पी की चीज़ें थी और हैं। भोपाल आबिद साहब का वतन सानी था। भोपाल जो एक आबिद साहब का वतन सानी था, वहाँ 3 बार गई और सिर्फ भोपाल ही की नहीं, आसपास की भी सैर की। भोपाल से वापसी पर आगरे की सैर भी की। ताज को दिन में भी देखा और चांदनी रात में भी। पहली बार ताज को देखकर जो असर होता है, जिस तरह इंसान मशहूर हो जाता है, मोहब्बत और अकीदत का ये शाहकार जिस तरह दिल में बस जाता है, उसे महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। इस पर कुंदे कलाम पाक की सूरतें पढ़ी है और उन फ़नकारों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने ये कमाल दिखाया। ताज की जालियों की निफासत और बारीकियों पर
सर धुना है। इसके गुंबद और मीनारों गर्ज हर एक चीज़ को देखा है और सोचा है कि इंसान की हुस्नकारी नफासत और मेहनत का इससे बढ़कर शाहकार शायद कोई और नहीं होगा। ये इमारत नहीं आरजू मुजस्सम हो गई है। आगरे और ताज के साथ मुझे अजंता और एलोरा की सैर भी याद है। हमने औरंगाबाद की तारीख़ी इमारतों और हैरत अंगेज़ चीज़ों की सैर भी की। बीबी का रोज़ा छोटा सा ताज महल कहा जा सकता है। अजंता के आसपास का कुदरती मनाजिर बहुत ही दिलकश है। मैंने ये बात महसूस की है कि हमारे हिंदुस्तानी ऋषियों मुनियों ने जहाँ भी इबादतगाहें या खानकाहें बनवाई तो सरसब्ज और कुदरती हुस्न से माला माल इलाके चुने हैं। दुनिया की सब लज्जतें तर्क कर देते हैं थे, मगर हुस्न कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियतें उनमें गैरमामूल थी। हैदराबाद भी उन मकामात में से हैं जिनको देखने की बचपन से आरज़ू थी। एक गर्मी में हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके खूब सैर की। इतना ही नहीं, यहाँ के हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन को देखा। यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी। उसकी कदीम मरकज़ी इमारत इतनी खूबसूरत, शानदार व नफीस है कि बेख्तियार मुँह से निकला कि इल्म का ये मंदिर हैदराबाद की सबसे खूबसूरत चीज़ है। हैदराबाद के आसपास के सारे सागर देखे। गोलकुंडा किला को खूब घूम फिर कर देखा और मरहूब हुए। सलार जंग म्यूज़ियम की 2 बार ज़ियारत की, मगर तशनगी बाकी रही। एक शख्स ने हज़ारों नवादिरात, जिनमें से हर एक अपने रंग में लाजवाब है, किस तरफ जमा कर डाले। ये ख़ुद एक हैरतनाक चीज़ है। वहाँ की मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल हैं। नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है। सालिहा आबिद काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन अंदाज में सालिहा आबिद ने अपने इस सफ़रनामे को, जो पूरे हिंदुस्तान घूमी है, उस चीज़ को इस सबक के अंदर में इन्होंने बयान किया है। आप भी इस लेसन को सुनिए और लुत्फ़अंदोज़ होइए, लुत्फ़ उठाइए और ज़िंदगी में आप भी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की शेयर कीजिए। और ख़ास तौर पर इनकी जो किताबें हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यादों के चिराग, ये याद रखने, कतरे से गोहर होने तक, अपनी अपनी स्लेब, 7वां आंगन और राह अमल। इसके अलावा जो है नक्शे अव्वल, साज़े हस्ती, दर्द दरमा, 3 चेहरे, निरास में आस, ये भी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ कहानी और मज़ामीन जैसे सुनहरे बालों वाले, बच्चों का देश, बहारे, सुंदर बच्चों के, अल्ताफ़ हुसैन अली, तो इन तमाम चीज़ों को याद रखना है। और ये जो सफ़रनामे हमने पढ़े, इनकी ये एक किताब है सिलसिला रोज़ो शब। इस लेसन से ये हिंदुस्तान जन्नत निशां सबक को लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ये हिंदुस्तान जन्नत निशान को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भाई भी, अगर वो जा ना सके तो कम से कम हिंदुस्तान के हुस्न से वो वाकिफ़ हो सकें।